ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇhtiyਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1-2 ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਮੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ MBA ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ MS ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਕੁਆਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ PhD ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। 21 ਆ ਗਿਆ। 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 22 ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ 22 ਤੋਂ 23 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਈ ਔਰ 20 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਜੈਨੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ICCRC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MBBS ਹੈ, MS ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 10,000 ਸੀਟਾਂ MBBS ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ US 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ऑप्शंस ਹੈਗੀਆਂ? देखिए रणवीर जी, डेफिनेटली कनाडा और US में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैरियर्स बन जाते हैं। डेफिनेटली उनको आज डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट जो है वो US या फिर कनाडा में, मेनली क्योंकि हम कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा में MBBS के लिए नहीं जा सकता, लेकिन देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स जो फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कनाडा में अगर आप मेडिकल MBBS प्रोग्राम लेना चाहते हो, मेडिसिन लेना चाहते हो, तो उसके लिए बायो के साथ मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। सो आपको जब ग्रेड 12 यहाँ से करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैथ्स को भी ऐड करना है। और फॉर श्योर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत हायर साइड होने चाहिए। एक नॉर्मल 60% वाला जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपको हेल्प नहीं करेगा एडमिशन सिक्योर करने के लिए। एडिशनल सब्जेक्ट बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखिए, लिया जा सकता है, लेकिन उसके जो यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि या तो आप नेशनल ओपन स्कूल से मैथ्स करते हो, या फिर आप नेक्स्ट इनटेक में मैथ्स करते हो, जो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप ग्रेड 12 को सेकेंड टाइम अटैम्प्ट करके मैथ्स का एडिशन ले रहे हो। सो एट फर्स्ट जब आप यहाँ से ग्रेड 12 कर रहे हो, फर्स्ट गो में ही बायो के साथ मैथ्स को ऐड कीजिए। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 रणवीर जी, की जब भी MBBS या मेडिकल या BDS को आपने कनाडा में टारगेट करना है तो डायरेक्ट एंट्रीज नहीं है आपके लिए। आपको ब्रिज प्रोग्राम्स के थ्रू अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आप इन प्रोग्राम्स में एंट्री ले सकते हैं। सो जो ब्रिजिंग प्रोग्राम्स हैं, दीज आर प्री हेल्थ साइंसेस या प्री जनरल
general arts and science, these kind of programs are being offered by the colleges और universities, जिनको आप करके अपने आप को MBBS जैसे programs के लिए qualify करते हो या BDS जैसे programs के लिए qualify करते हो. Directly college में जाके university में जाके MBBS के लिए admission लेना somehow it's not possible. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आपके फाइनेंसेस का. दिस इज़ रियली अ वेरी ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. क्योंकि जब मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि जब इंडियन स्टूडेंट अपने लिए या पंजाब का स्टूडेंट अपने लिए एजुकेशन प्लान करता है कनाडा में, तो उनको एक सिंपल फॉर्मेट जो है वो चूज़ करना वो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि 2 साल की पढ़ाई लेके 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेके हमें PR होना है. लेकिन व्हेन एन एजुकेशन ओरिएंटेड स्टूडेंट कम्स, सो वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देखा जाता है, एडमिशन के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो देखा जाता है, और इसके साथ साथ आपका जो फाइनेंस है, जो फी स्ट्रक्चर है, जो पॉकेट है, जो कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है वो देखा जाता है. सो MBBS या BDS जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, these are very higher side programs, professional degrees, lengthy programs और expensive programs हैं. So हमारे रूटीन एक्सपीरियंस में भी रणवीर जी हम लोगों को मैं ये कहूँगी कि साल में कोई 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन प्रोग्राम्स के लिए अपना इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक अमाउंट जो है वो इन प्रोग्राम्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक मैंडेटरी फैक्टर है. सो अदरवाइज रूट्स हैं. आप ब्रिजिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे मैंने कहा है कि प्री हेल्थ साइंसेस जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन लेके अपने आप को इन प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई करते हो. MBBS या BDS जैसे और भी बहुत सारे डिग्रीज हैं जिसके लिए आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हो. रूट्स आर अवेलेबल. लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर और हेल्दी स्टेप की हो सकता है, मान लो बच्चे कोल उन्ने फाइनेंस अवेलेबल नहीं, उन्होंने सीट नहीं मिलती, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसिस बन जाता है कि डायरैक्टली BDS ਜਾਂ MBBS ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, है ना? देखिए रणवीर जी, ऐसे केस में डेफिनेटली एक रूट है, ऑल्टरनेटिव है आपके लिए, और वो ऑल्टरनेटिव ये है कि एक तो सबसे पहले आपको एजुकेशन ओरिएंटेड रहना है. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आप कॉलेज लेवल पे किसी भी तरीके का एक ब्रिजिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं या रेलिवेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं. जैसे आप ग्रेड 12 मेडिकल के बाद आप अपने आप को जो है वो सोशल सर्विस वर्कर या पर्सनल सपोर्ट सर्विस वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें आप अपना एक डिप्लोमा करके पहले आप अपना PR प्लान कर लीजिए. जब आप अपना PR प्लान कर लेते हैं और जब आप एज ए कैनेडियन इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आप इजीली सीट्स जो हैं वो अवेल कर पाएंगे. दिस इज़ नंबर 1. नंबर 2, जो आपका फाइनेंस है वो एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट आपको जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट आपको पे करनी हो जाएगी. सो ये सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा जब आप एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट, कैनेडियन डोमेस्टिक स्टूडेंट आप इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी का फंड है वो भी आप पे जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ की अथॉरिटीज़ की तरफ से. सो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप एज अ कैनेडियन डोमेस्टिक स्टूडेंट ले सकते हैं. लेकिन उसके लिए आप रेलिवेंट प्रोग्राम पहले 2 साल का कीजिए, फिर 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेके आप PR होइए, उसके बाद इन प्रोग्राम और इन डिग्रीज को आप कोई मेडिकल लाइन से एसोसिएट डिग्री मिलती है बच्चे को? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे कॉलेजेस में एसोसिएट ऑफ साइंस प्रोग्राम आप ले सकते हैं. एसोसिएट ऑफ साइंस मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों ही स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है. सो जब आप एसोसिएट ऑफ साइंस लेते हैं, आप अपनी चॉइस के प्रोग्राम्स को उसमें ऐड कर सकते हो. आप बायोलॉजी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आगे जितने भी कोर ब्रांचेस हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो. इसके अलावा आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स रिलेटेड जो भी डीप स्पेशलाइजेशंस हैं, डीप ब्रांचेस हैं, उनको अपने एसोसिएट ऑफ साइंस डिग्री प्रोग्राम में आप ज़रूर ऐड कर सकते हो. ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के पास एसोसिएट ऑफ साइंस डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन होते हैं, बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल लेवल पे. जी मैम, जिस तरह ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ. ਗਾਈਡ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਾਈਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੈਲੰਜਸ? ਚਲੋ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਕੁੱਕਰੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ PR ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ स्ट्रीम्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ है? हाँ जी रणवीर जी बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हो प्रोफेशनल डिग्री में और आप अगर आपका टारगेट है कि आपको मास्टर भी अपने ही रेलेवेंट स्ट्रीम में करना है, तो हम लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाला जो स्टूडेंट है जिसने यहाँ पे बीटेक किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, किसी भी स्ट्रीम का जो बीटेक है, अगर स्टूडेंट एमटेक करना चाहता है, जिसको कनाडा में एमएस कहा जाता है, मास्टर ऑफ साइंस विद एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सो एमएस में एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एक तो ये चीज़ स्टूडेंट को जरूर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मास्टर डिग्रीज आर नॉट बीइंग ऑफर्ड बाय द कॉलेजेस इन कनाडा। मास्टर डिग्रीज हमेशा कनाडा में जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही ऑफर होती हैं, कॉलेज लेवल पे ऑफर नहीं होती। जब आप, हाँ जी, मास्टर्स यानी कि पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, सो मास्टर्स में जब आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने इंजीनियरिंग डिग्रीज, एमएस लेवल डिग्रीज़ को आपने प्लान करना है, सो आपकी आइल्स के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास जो कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेशंस हैं, लाइक आपका जो जीआरई का एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, एमएस के एडमिशन के लिए जीआरई आपका क्लियर्ड होना चाहिए अच्छे स्कोर के साथ, या फिर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम्स लेना चाहते हैं, सो उसके लिए जीमैट की रिक्वायरमेंट रहती है। लाइक एमबीए अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, आपको एमबीए में एडमिशन के लिए, या मास्टर ऑफ मैनेजमेंट एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, आपको जीमैट की रिक्वायरमेंट जो है वो ये कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेशंस आपको जो है वो एलिजिबल करती हैं एडमिशन्स के लिए। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे आइल्स के साथ अपने आप को क्वालिफाई करता है और एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन के लिए वर्कआउट नहीं करना चाहता, सो ये एक बैरियर बहुत ज़्यादा बन जाता है। लेकिन मैं ये ज़रूर स्टूडेंट्स को बता दूँ कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जीमैट और जीआरई वाले जो सर्टिफिकेशंस, कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत ही कन्वीनियंट सर्टिफिकेशंस हैं। आइल्स की तरह हर महीने 2 या 3 डेट्स इन एग्ज़ाम्स की निकलती हैं। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से तैयारी करके किसी भी टाइम पे ये सर्टिफिकेशंस में अपेयर हो सकते हो और इनको अचीव कर सकते हो, ताकि कनाडा में आपको जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे एमएससी या फिर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं। एक और बहुत ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ 18-20 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10,000 ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। 20 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਈ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 20 ਤੋਂ 21 ਤੋਂ 22 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ सपोर्ट? इट्स नॉट अ गैप रणवीर जी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिन लोगों का हम लोगों ने इसी कॉम्बिनेशन में जो है वो वीज़ास निकाले हैं और कुछ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस भी हैं। सो मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को बता दूं, ये आपके क्वेश्चन को मैं बहुत एलेबोरेट तरीके से आंसर करना चाहती हूँ कि अगर आपने 2020 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, आप ऑल इंडिया मेडिकल एग्ज़ाम देना चाहते हैं या AIEEE देना चाहते हैं, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल ग्राउंड पे, सो आप जो भी कोचिंग्स ले रहे हो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में फ़ाइल कीजिए, या फिर आप अपना ऑफ़र लेटर में भी अगर आपको गैप कवर करने का रिक्वायरमेंट कहीं अगर आपसे मांगा जाता है तो आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन के रिकॉर्ड्स हैं आप साथ में ऐड कर सकते हो। दीज आर पॉजिटिव, ये गैप्स नहीं हैं। आप किसी चीज़ को टारगेट करके प्रिपरेशन में थे, आप उस चीज़ में प्रॉपरली इन्वेस्टेड थे, मॉनेटरी लेवल पे, टाइम लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, सो वो चीज़ों को आप जस्टिफाई कर सकते हो। सो दैट्स नॉट अ गैप, उसका बेनिफिट आपको हो सकता है। द ओनली थिंग इज़ कि आप जो इनटेक इमीडिएटली आप लेना चाहते थे वो शायद आपको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपको मई 2022 या सितंबर 2022 टारगेट करना पड़ सकता है। लेकिन उस दौरान आपने जो भी प्रिपरेशन की है दैट इज़ अ पर्सनल एडिशन टू योर पर्सनल करिकुलम। डेफिनेटली उसका कोई सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिला उस 1 साल का, लेकिन आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है, अपने पर्सनल नॉलेज को, IQ को आपने जो है वो इम्प्रूव किया है, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। और
उन कोचिंग्स के जो भी आपके फ़ीस के रिसीट्स हैं या एग्ज़ाम में आपने अटेम्प्ट किया है उसके जो रोल नंबर हैं, एडमिट कार्ड्स हैं, उनको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में ऐड कीजिए। ये सेटिस्फैक्ट्री तरीके से वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करते हैं और ये गैप बिल्कुल नहीं बनता। 5 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਵਾਲ 4 ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ गए या ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ अपडेट? मई 2022 ओवरऑल ओपन है हर एक प्रोविंस में, हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सभी कॉलेजेस में प्रोग्राम्स ओपन हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है मई 2022 के लिए आप अप्लाई कीजिए। सितंबर 2022 के लिए काफ़ी सारे डिमांडिंग कॉलेजेस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, जिनके एडमिशन्स बहुत डिमांड में रहते हैं। शेरिडन कॉलेज है, लैम्पटन कॉलेज है, बो वैली कॉलेज है, KPU है। द लिस्ट इज़ क्वाइट बिग। सो जो स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हैं, मई में भी प्रोग्राम्स हैं, सितंबर 2022 में भी हैं। आप काइंडली टाइम बिना वेस्ट किए हुए इमीडिएटली ऑफर लेटर अप्लाई कीजिए। मैम विजिटर्स ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਲੈਣੇ ਤਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। हाँ जी, डेफिनेटली विजिटर वीज़ा आपको इमीडिएटली फाइल करना चाहिए, चाहे विजिटर आप करना चाहते हैं, सुपर वीज़ा करना चाहते हैं। द ओनली हर्डल की बायोमेट्रिक्स का थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन मैं ज़रूर बता दूं रणवीर जी, बायोमेट्रिक के लिए भी जो है वो डेट्स फ्लैश होती हैं 24 आवर्स में, किसी भी टाइम पे विंडो में जो है वो अपॉइंटमेंट के डेट्स फ्लैश होते हैं। आपको एक कंप्लीट चेक रखना पड़ता है। सो अभी हम लोगों ने कल भी जो है वो 8 या 9 नवंबर के डेट्स अपने स्टूडेंट्स के लिए बुक किए हैं। द ओनली थिंग इज़ थोड़ा सा क्रूशियल है, एक अगर आप प्रॉपर चेक रखेंगे आपको बायोमेट्रिक के डेट्स मिल जाएंगे। सो द विंडो इज़ कम्प्लीटली ओपन, आप ईजीली अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੰਟ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के जो एप्लीकेशंस हैं वो आप बिल्कुल फेयरलेस होके लगाइए। विंडो जो है वो प्रोसेस हो रही है। लास्ट मंथ जो है वो रिजल्ट्स एकदम से फ्लो में आए थे, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मार्केट में मेडिकल इशू किए गए थे। बीच में थोड़ा सा जो फ्लो है वो फिर से स्लो हुआ है, लेकिन इट डजंट मीन कि एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रही। डेफिनेटली ओपन वर्क परमिट के एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं। सो आप काइंडली अपनी एप्लीकेशन को सही एडवाइस के साथ और किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस ज़रूर करवाइए, वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग हो रही है हाई कमीशन की तरफ से। अच्छा मैम, जिन्होंने वीज़े लग रहे हैं इस वक्त, उन्होंने मैंडेटरी है ट्रैवल करना या हाले भी कोई ऑप्शन है कि वो थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ सकता विद्यार्थी भर दे विच? देखिए, सितंबर इनटेक का जो स्टूडेंट है वो तो ऑलरेडी आप ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं। जनवरी में मैक्सिमम एजुकेशन इन पर्सन हो चुकी है। आई गेस कुछ प्रोग्राम्स अभी भी कॉलेजेस में जो है वो वर्चुअल लेवल पे हैं, जिनको अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, हाइब्रिड लेवल पे भी हैं। सो हर तरीके से कॉलेजेस की तरफ से आपको एकोमोडेट करने के प्रोविजंस हैं। अदरवाइज़ क्योंकि ट्रेवल ओपन हो चुका है, अब वर्ल्ड वाइड जो ट्रेवल है वो स्मूथ है। सो आप अगर आपको वीज़ा मिलता है, आप ईजिली ट्रेवल करके आप अपनी एजुकेशन को इन पर्सन रिज्यूम कर सकते हैं। बतौर एक ICCRC कंपनी बच्चों ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਿਪਸ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੀ ਸਿद्धांत, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀ टिप्स और स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेरी तरफ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप यही है स्टूडेंट को कि आप एक तो वीक प्रोफाइल्स पे रिस्क मत लीजिए। अगर आप एकेडमिकली वीक हैं, आप लैंग्वेज पे प्ले कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकेडमिकली अगर आप वीक हैं तो आप अपने आइल्स में, PT में बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करके अपने प्रोफाइल को बैलेंस कीजिए और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि हमने जो भी लेसन क्यूबिक से या प्राइवेट कॉलेजेस से लिया है उसको माइंड में रखते हुए आप हमेशा अपना एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए और किसी एजुकेटेड लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के थ्रू ही प्रोसेस करवाओ। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप रणवीर जी, टाइम इज़ वेरी फास्ट एंड देर इज़ लॉट ऑफ रश देयर इन द मार्केट। सो बहुत सारा पुराना बैकलॉग है जिन लोगों ने अभी अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है, ऑफर सिक्योर करना है। सो टाइम वेस्ट मत कीजिए, चाहे आप 2022 मई टारगेट कर रहे हैं या सितंबर टारगेट कर रहे हैं, आपको जल्दी से अपना ऑफर लेटर अप्लाई करके अपनी एप्लीकेशन को क्यू में लगाना चाहिए। मैं पहला भी ये सवाल कई बार पूछ चुका, पर मैनू हर बार पूछना पैंदा है। जिवें ਆਪਾਂ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 21 ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 22 ਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸਸ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ प्रोसीजर जो चल रहा है उम्मीद उम्मीद चली जाए? आप क्रैश कोर्सेज कर सकते हैं, आप फ्रेंच लैंग्वेज पे अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कीजिए। फ्रेंच इज़ वेरी हेल्पिंग लैंग्वेज, क्योंकि कनाडा ड्यूल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सो फ्रेंच के कोर्सेज आप बीच में कर सकते हैं, क्योंकि वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में भी ऐड करते हैं तो वो ऑथेंटिक हैं, वीज़ा ऑफिसर को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे। पोस्ट लैंडिंग जब आप अपने लिए जॉब्स ढूंढने के लिए जाओगे, फ्रेंच ग्राउंड पे आप बहुत अच्छे जॉब सिक्योर कर सकते हो। सो मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि लोकल काउंसिल से गिने चुने डिप्लोमास करने के कंपैरिजन में अगर आप फ्रेंच को प्लान करते हैं वो बहुत हेल्पिंग हो सकता है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਤੌਰ ICCRC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।